السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پلیس آف ایجوکیشن، جہاں ہم میڈیکل انٹرنس ایگزام جیسے MD-CAT NEET MCAT کے لیے فزکس، کیمسٹری اور دوسرے سبجیکٹس کی MCQs کی پریپریشن کراتے ہیں. تو آج ہم اپنا کیمسٹری کے MCQs ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں. تو ہمارے پاس فرسٹ MCQs ہے: Glucose is transformed into ethanol by the enzyme found in yeast. گلوکوز جب ہم اپنا ایتھینول کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ کون سا انزائم ہوتا ہے جو کہ ایسٹ کے اندر موجود ہوتا ہے؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں. آپشن سی جو ہے وہ اس کا کریکٹ آپشن ہے، زائمیس. زائمیس انزائم جو ہمارے پاس ایسٹ کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جب ہم گلوکوز کو ٹرانسفر کرتے ہیں ایتھینول کے اندر. ہمارا سیکنڈ MCQ ہے: The catalyst used in the industrial production of acrylonitrile. وہ کیٹلسٹ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے انڈسٹریل پروڈکشن کے اندر ایکریلونیٹرائل کے اندر. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی. آپشن ڈی میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کاپر کلورائڈ اینڈ ایلومینیم آکسائڈ. ٹھیک ہے، کون سا کیٹلسٹ یوز ہوتا ہے ہمارے پاس؟ کاپر کلورائڈ اینڈ ایلومینیم آکسائڈ. پھر آتے ہیں اپنے تھرڈ MCQs پہ. ہمارا تھرڈ MCQs ہے: The reaction responsible for generating electricity in a voltaic cell. کون سا ریئیکشن رسپانسبل ہوتا ہے جب ہمارے پاس الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے والٹک سیل کے اندر؟ کون سا ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے پاس؟ آپشنز دیکھتے ہیں ہم اپنے. ہمارے پاس آپشن سی ہے ریڈاکس ریئیکشن. ریڈاکس ریئیکشن جو ہے وہ ہمارے پاس رسپانسبل ہوتا ہے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے میں والٹیلک سیل کے اندر. ہمارا 4 MCQs ہے: یوریا is synthesized by the reaction of liquid ammonia with. یوریا کی جب ہم سائنتھسائزیشن کرواتے ہیں کسی بھی ریئیکشن میں، جیسے لکوڈ امونیا ہو گیا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم یوریا کو جب سائنتھسائز کروائیں گے لکوڈ امونیا کے ساتھ تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا آپشن اے. آپشن اے ہے ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ. تو اس کا آپشن اے کریکٹ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کے پاس ہائی پریشر ہوگا اور ہائی ٹیمپریچر ہوگا. کس کے اوپر؟ کیٹلسٹ کے اوپر، جب ہم یوریا کی سائنتھسائزیشن کروائیں گے لکوڈ امونیا کے ریئیکشن کے ساتھ. ہمارا 5th MCQ ہے: The energy needed to remove. انرجی ہمارے پاس نیڈ ہوتی ہے ریموو کرنے میں این الیکٹران، اس الیکٹران کو فرام دا آؤٹر موسٹ شیل آف این آئسولیٹڈ گیسیس ایٹم. ہمارے پاس کون سی انرجی کی نیڈ ہوتی ہے جب ہمیں الیکٹران کو ریموو کروانا ہوتا ہے اپنے آؤٹر موسٹ شیل میں؟ کس میں؟ گیسیس ایٹم کے اندر. ہم اپنے آپشنس دیکھتے ہیں. اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، آئونائزیشن انرجی. Which of the following alkali metal carbonates decompose upon heating to its oxide releasing carbon dioxide? وہ کون سا الکلی میٹل ہے کاربونیٹس کے اندر جو کہ اپنے آکسائڈس کے اوپر ڈیکمپوز ہوتا ہے جب اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں اور ریلیز کرتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو؟ تو اس کا آپشنس دیکھتے ہیں ہم. ہمارا اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، لیتھیم کاربونیٹ. لیتھیم کاربونیٹ الکلی میٹل، وہ لیتھیم کاربونیٹ وہ الکلی میٹل کاربونیٹ سے جو کہ ڈیکمپوز ہوتا ہے جب ہم آکسائڈس کو ہیٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ MCQs کے اوپر. ہمارا 7 MCQs ہے: Removing a hydrogen atom from benzene leaves behind a group known as. جب ہم ہائیڈروجن ایٹم کو ریموو کرتے ہیں بینزین گروپ میں سے تو وہ کون سا گروپ ہوتا ہے جو کہ اس کے پیچھے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، فینائل گروپ. فینائل گروپ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہائیڈروجن ایٹم میں سے جو ہے وہ جب ہم بینزین کو لیو کراتے ہیں تو وہ اس کے بیک سائڈ پہ ہوتا ہے. پھر ہم آتے ہیں اپنے 8 MCQs پہ. White lead is characterized as. White lead کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ White lead کو جو ہے وہ lead 2 بھی کہا جاتا ہے اور ایک یہ کرسٹلائن سالڈ ہے. وائٹ لیڈ کو ہم کیسے کریکٹرائز کرتے ہیں؟ اس کے آپشنس دیکھتے ہیں. اس کے آپشنس ہے آپشن سی، ایمورفس. ایمورفس اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن سی. وائٹ لیڈ کو ہم ایمورفس فارم کے اندر جو ہے وہ کریکٹرائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں اپنے 9 MCQ سے. Which of the following sulfates in insoluble is in water? وہ کون سے سلفیٹس ہیں جو کہ انسoluble ہوتے ہیں واٹر کے اندر؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سلفیٹس کیا ہوتے ہیں.
ठीक है। सल्फेट्स क्या होते हैं? सल्फेट्स हमारे पास जो है वो केमिकल टाइप कंटेनिंग सल्फर है जो कि बॉन्ड बनाता है 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास मिनरल्स, सोप्स, फूड एडिटिव्स वगैरह, ये सब हमारे पास सल्फेट्स में आ जाते हैं। तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शंस में है, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? बेरियम सल्फेट, ऑप्शन बी। बेरियम सल्फेट जो है हमारे पास इंसॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का जो इंट्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है इन टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर, उसको कहा जाता है नाइट्रेशन, उसको नाइट्रेशन भी जाना जाता है उसको। दिस अकर वो जब प्रेजेंट होता है व्हेन बेंजीन इज हीटेड, जब बेंजीन को हम हीट देते हैं with a 1:1 ratio mixture of dash at 50 degree centigrade to -55 degree centigrade। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हम, इसका क्या हुआ पूरा प्रोसेस कि जब हम अपने नाइट्रो ग्रुप के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन रिंग को, तो वो कराता है नाइट्रेशन। ठीक है, अब नाइट्रेशन कब अगर होती है? जब हम बेंजीन रिंग को हीट देंगे 1:1 मिक्सचर के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? नाइट्रिक एसिड की और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 50 डिग्री से लेके -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके जी, तो हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नोबल गैस यूज्ड इन कैंसर रेडियोथेरेपी। नोबल गैसेस होते हैं हमारे पास रेडॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, हमारे पास नोबल गैसेस हैं। ठीक है, अब कैंसर रेडियोथेरेपी में कौन सी नोबल गैस यूज हो रही है हमारे पास ऑप्शन ए है इसका रेडॉन। रेडॉन गैस जो है वो हमारे पास यूज हो रही है रेडियोथेरेपी में। क्यों? क्योंकि इसके पास यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इसके पास अल्फा पार्टिकल इमिशन होता है, इसके पास हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसके पास शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, और ये इजी टू प्रोड्यूस होता है और हैंडल करने के लिए भी। तो इसीलिए हम कैंसर रेडियोथेरेपी में रेडॉन गैस अपनी यूज करते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज से हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एटम्स के अंदर कब होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कब होता है? क्योंकि क्यों होता है? उनकी प्रेजेंस की वजह से। कौन सी प्रेजेंस होती है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उस पे होते हैं। इसके ऑप्शंस में हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्यों होता है? क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रिफर करता है हमारे पास एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू बी वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। वो मटेरियल्स जो कि हमारे पास वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसके अगर में हमारे पास जितने भी मटेरियल्स होंगे तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने 13 एमसीक्यूज पे। हमारा 13 एमसीक्यूज है मिथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। मिथेनॉल हमें कहाँ से मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से एंड हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से और कार्बन मोनोऑक्साइड से। लेकिन उसके अंदर हम कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं? हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जिंक ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है KMnO4 फंक्शन एज। KMnO4 फंक्शन एज यानी कि हमारे पास जो पोटेशियम पैरामैग्नेट है वो फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास? रिड्यूसिंग एजेंट, प्रिसिपिटेटिंग एजेंट नहीं। हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है कि KMnO4 हमारे पास फंक्शन कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में अंडरगो रिडक्शन में, यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अंडरगो करने में, यानी कि एक्सेप्ट करने में और अंडरगो करने में रिडक्शन को। तो इसीलिए KMnO फंक्शन करता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 15 एमसीक्यूज पे। द ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री है वो हमारे पास कौन सी टाइप के ऊपर बेस करती है? डैश,
अकरिंग इन द वैलेंस शेल डैश अकरिंग इन द जो कि हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट होता है ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक केमिकल कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी मिक्सिंग को, उसकी मिक्सिंग से वो एक न्यू ऑर्बिटल्स बनाता है जो कि हमारे लिए बॉन्डिंग के अंदर सुटेबल हो, इसी वजह से हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। जी, तो हम अपने 16 MCQs पे आते हैं। हमारा 16 MCQ से द कोगुलेंट यूज टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम रॉ वाटर इज। कोगुलेंट को जब हम यूज करते हैं रिमूव करने में सस्पेंड इम्प्योरिटीज हमारे पास रॉ वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, कौन से क्या चीज यूज करते हैं उसके लिए, हम उसको सस्पेंड करने के लिए ऑप्शंस देखते हैं अपने। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है एलम। अब अच्छा हमारे पास कोगुलेंट क्या होता है, कोगुलेंट हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि कॉज करवाता है लिक्विड्स टू जेल और सॉलिडिफाई करता है हमारे कंपोनेंट को, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू से द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, जब हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस होगी आइसोटॉप्स के अंदर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, जब हम उसको एज अ एलिमेंट डिटरमाइन करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए क्या यूज करेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इससे करेक्ट ऑप्शन है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। अब हमारे पास अबंडेंस क्या होती है, अबंडेंस हमारे पास वो होती है, ठीक है, अबंडेंस क्या होती है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट इज अवेलेबल और प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया, वो क्वांटिटी किसी भी चीज की जो कि अवेलेबल हमारे पास हो उसके पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उस चीज को हम डिटरमाइन करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है हमारे पास, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास वो होती है जिसमें हम यूज करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए द मास ऑफ चार्ज रेशो ऑफ आयंस, आयंस के चार्ज रेशो को, ठीक है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज, फिनॉल का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। अब हमारे पास होती है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन वर्ड क्या, अब हम आता है हमारे पास आता है डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन हमारे पास क्या है, डिसोसिएशन है हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं दो से और मोर स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, जैसे कि एटम हो गया है, आयंस हो गया और रेडिकल्स हो गया। अब इसका कांस्टेंट क्या होगा, इसका कांस्टेंट है, ऑप्शंस की तरफ आते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 लैम्डा माइनस 10, इसका जो है वो कांस्टेंट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है collagen and albumin are classified as, अब collagen and albumin are classified as, अब collagen और albumin हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, इसेंशियल प्रोटीन्स है जो कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, उसको हम क्लासिफाइड करेंगे एज अ सिंपल प्रोटीन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिंपल प्रोटीन्स, ऑप्शन ए सिंपल प्रोटीन्स के अंदर इसको हम क्लासिफाइड करवाते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है सब्लिमेशन इज यूज टू प्योरीफाई, सब्लिमेशन हमारे पास क्या होता है, सब्लिमेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजिशन करवाते हैं उन सब्सटेंसेस की जो सॉलिड फेस में होते हैं लेकिन डायरेक्टली वो क्या हो जाते हैं, गैस फॉर्म में चले जाते हैं, उनकी ट्रांजिशन हो जाती है। अब उसके लिए हमारे पास कौन सा एसिड यूज होता है, बेंजोइक एसिड का। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड को हम एज अ सब्लिमेशन यूज करवाते हैं किसी भी चीज को प्योरीफाई करने के लिए।